Hello, welcome in revision myself. हरिकेश अशोक दुबे। आज हम भारत के जियोग्राफिकल रीजन्स .ke में स्टडी करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट हिमालय माउंटेन चेन, ड्रेनेज सिस्टम, हिमालय रिवर्स, पेनिनसुलर रीजन, फिजियोलॉजिकल डिविजन्स, आइसलैंड्स क्लाइमेट ऑफ इंडिया, रिलीफ एंड ड्रेनेज अरेबियन सी, water peninsular plateau, plain of India. So let's begin with 1. Locational setting. India is often described as a subcontinent and as a part of the Asian continent. भारत को प्रायः एक उपमहाद्वीप कहा जाता है और यह एशिया महाद्वीप का एक भाग है। India extends from the snow-covered Himalayas in the north to the shores of the Indian Ocean in the south. भारत उत्तर में हिमालय की बर्फीली पर्वत श्रेणियों से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के तटों तक फैला हुआ है। The country receives abundant sunshine from the tropical sun and sufficient moisture from the monsoon rains. भारत को उष्णकटिबंधीय सूर्य से भरपूर धूप तथा मानसूनी वर्षा से पर्याप्त नमी प्राप्त होती है। India is located in the northern hemisphere. भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। The Tropic of Cancer passes approximately through the middle of the country. कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। The northernmost part of India consists of the Himalayan mountain system which extends from the Pamir plateau known as the roof of the world. भारत का उत्तरी भाग हिमालय पर्वत प्रणाली से बना है जो एशिया के पामीर पठार जिसे विश्व की छत कहा जाता है वहां से फैलती है। Kanyakumari is the southernmost tip of the Indian mainland where the peninsula gradually narrows and merges into the Indian Ocean. कन्याकुमारी भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम छोर है जहां प्रायद्वीप धीरे धीरे संकरा होकर हिंद महासागर में मिल जाता है। The distance from the northernmost point to the southernmost point of mainland India is about 3,200 kilometers. भारत के मुख्य भूभाग के उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग 3,200 किलोमीटर है। Across the eastern borders and the Bay of Bengal lie Myanmar, Malaysia, Indonesia, Thailand, Cambodia, Laos and Vietnam. भारत की पूर्वी सीमा तथा बंगाल की खाड़ी के पार म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम स्थित हैं। Across the western borders lie Pakistan, Iran, Iraq and the Arab countries. भारत की पश्चिमी सीमा के पार पाकिस्तान, ईरान, इराक तथा अरब देश स्थित हैं। 2. Physiographic divisions. India is broadly divided into 3 major physiographic divisions. भारत को व्यापक रूप से 3 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। The Himalayan mountain chain, हिमालय पर्वत श्रृंखला। The plain of India, भारत का उत्तरी मैदान। The peninsular plateau, प्रायद्वीपीय पठार। 3. Himalayan mountain chain. The Himalayan mountain chain consists of parallel mountain ranges with rugged relief and uneven topography. हिमालय पर्वत श्रृंखला समानांतर पर्वत श्रेणियों से बनी है जिनका भूभाग ऊबड़-खाबड़ और अत्यंत दुर्गम है। The Himalayas are divided into 3 parallel ranges. हिमालय को 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ग्रेट हिमालयस, महान हिमालय, लेसर हिमालयस, लघु हिमालय, सब हिमालयस, शिवालिक या उप हिमालय। These are also known as the inner, middle and outer Himalayas. इन्हें आंतरिक, मध्य तथा बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। The inner Himalayas have an average height of about 6,000 meters and contain the highest Himalayan peaks. आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6,000 मीटर है और इसमें हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं। Mount Everest has a height of 8,848 meters. It is called Sagarmatha in Nepal and Chomolungma in China. Mount Everest की ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसे नेपाल में सागरमाथा तथा चीन में चोमोलुंगमा कहा जाता है। Kanchenjunga is 8,598 meters high.
कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। नंगा पर्वत is 8,126 meters high. नंगा पर्वत की ऊंचाई 8,126 मीटर है। नंदा देवी is 7,817 meters high. नंदा देवी की ऊंचाई 7,817 मीटर है। K2 is 8,611 meters high. K2 की ऊंचाई 8,611 मीटर है। नामचा बरवा is 7,756 meters high. नामचा बरवा की ऊंचाई 7,756 मीटर है। 4. Plain of India. The northern plain lies between the Peninsular Plateau and the Himalayas. उत्तरी मैदान प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच स्थित है। The plain was formed by the gradual filling of an ancient rift valley with sediments. यह मैदान प्राचीन भ्रंश घाटी में समय के साथ अवसादों के भराव से बना है। The important divisions of the northern plain are Bhabar Tarai Bhangar Khadar and Deltaic Plain. उत्तरी मैदान के प्रमुख भाग भाबर तराई भांगर खादर तथा डेल्टाई मैदान हैं। 5. Peninsular Plateau. The Peninsular Plateau is made up of ancient crystalline rocks formed during the Precambrian period. प्रायद्वीपीय पठार प्रीकैम्ब्रियन काल की प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है। These rocks have remained above sea level since their formation. इन चट्टानों के बनने के बाद से ये समुद्र तल के ऊपर ही बनी हुई हैं। 6. Islands. The islands in the Bay of Bengal include the Andaman and Nicobar Islands. बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। The Andaman group has about 200 islands extending over 350 kilometers. अंडमान समूह में लगभग 200 द्वीप हैं जो लगभग 350 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। The Nicobar group consists of 19 islands. निकोबार समूह में 19 द्वीप हैं। Some Nicobar islands are 60 to 100 kilometers long. निकोबार के कुछ द्वीप 60 से 100 किलोमीटर लंबे हैं। The Arabian Sea contains the Lakshadweep Islands formed by coral deposits. अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है जो प्रवाल भित्तियों से बना है। The southernmost Lakshadweep Island lies just north of the Maldives. लक्षद्वीप का दक्षिणतम द्वीप मालदीव के ठीक उत्तर में स्थित है। 7. Relief and drainage. India has great diversity in its landforms and drainage systems. भारत में स्थलाकृतियों और जल निकासी प्रणालियों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। The Himalayas connect many diverse cultural regions of India. हिमालय भारत के अनेक सांस्कृतिक क्षेत्रों को एक सूत्र में जोड़ता है। The North Indian plain is flat and has low relief with a vast level surface. उत्तरी भारतीय मैदान समतल तथा विस्तृत निम्न भूभाग वाला क्षेत्र है। 8. Drainage. Indian rivers are divided into two major categories based on their origin. उत्पत्ति के आधार पर भारत की नदियों को दो प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है। हिमालयन रिवर्स, हिमालयी नदियां। पेनिनसुलर रिवर्स, प्रायद्वीपीय नदियां। 9. Himalayan rivers. Himalayan rivers have very large drainage basins. हिमालयी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र बहुत विशाल होता है। The Indus drains about 250,000 square kilometers within the Himalayan region. सिंधु नदी हिमालयी क्षेत्र में लगभग 2,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जल निकास करती है। Himalayan rivers are perennial. हिमालयी नदियां बारहमासी होती हैं। The three major Himalayan river systems are Indus, Ganga and Brahmaputra. हिमालय की तीन प्रमुख नदी प्रणालियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। Indus total basin area is 1,165,000 square kilometers and the basin area in India is 321,290 square kilometers.
सिंधु नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,290 वर्ग किलोमीटर है। Ganga total basin area is 1,060,000 square kilometers and the basin area in India is 861,404 square kilometers. गंगा नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र 10,60,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में इसका क्षेत्रफल 8,61,404 वर्ग किलोमीटर है। Brahmaputra total basin area is 580,000 square kilometers and the basin area in India is 187,110 square kilometers. ब्रह्मपुत्र नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र 5,80,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में इसका क्षेत्रफल 1,87,110 वर्ग किलोमीटर है। 10. Peninsular rivers. Peninsular rivers flow through shallow valleys. प्रायद्वीपीय नदियां उथली घाटियों से होकर बहती हैं। Most peninsular rivers are seasonal because they depend mainly on rainfall. अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि उनका जल प्रवाह मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करता है। Many peninsular rivers have straight and linear courses. अनेक प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह मार्ग सीधा और रेखीय होता है। East flowing peninsular rivers are Kaveri, Krishna, Godavari and Mahanadi. पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी हैं। West flowing peninsular rivers are Narmada, Tapi, Sabarmati, Mahi and Shravati. पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही और शरावती हैं। 11. Climate of India. The Tropic of Cancer passes through the middle of India, making most parts of the country hot while the northern regions remain cold. कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है, जिससे देश का अधिकांश भाग गर्म रहता है जबकि उत्तरी क्षेत्र ठंडे रहते हैं। चेन्नई is hotter than Kolkata because it is closer to the equator. चेन्नई कोलकाता की तुलना में अधिक गर्म है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के अधिक निकट स्थित है। शिमला is colder than Delhi because it is located at a higher altitude. शिमला दिल्ली की तुलना में अधिक ठंडा है क्योंकि यह अधिक ऊंचाई पर स्थित है। मुंबई is cooler in summer and warmer in winter than Nagpur because it is close to the sea. मुंबई गर्मियों में नागपुर से ठंडी तथा सर्दियों में अपेक्षाकृत गर्म रहती है क्योंकि यह समुद्र के निकट स्थित है। Monsoons have the greatest influence on the climate of India. भारत की जलवायु पर मानसून का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। The two main monsoons are the southwest monsoon and the northeast monsoon. भारत के दो प्रमुख मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून हैं। The southwest monsoon reaches Lakshadweep first and then Kerala in early June. दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले लक्षद्वीप पहुंचता है और उसके बाद जून के प्रारंभ में केरल में प्रवेश करता है। In Kerala the southwest monsoon is called Edavapati. केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून को एडवापाठी कहा जाता है। The northeast monsoon lasts for a shorter period and brings less rainfall. उत्तर पूर्व मानसून कम अवधि का होता है और इससे कम वर्षा होती है। The heaviest rainfall in India occurs in the Assam hills, especially at Cherrapunji in Meghalaya. भारत में सबसे अधिक वर्षा असम की पहाड़ियों तथा विशेष रूप से मेघालय के चेरापूंजी में होती है। The desert regions of India are western Rajasthan and Kutch. भारत के प्रमुख मरुस्थलीय क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान और कच्छ हैं। एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें वीडियो।